फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं आईआईटी हैदराबाद कैंपस टूर। अरे वाह, जापान सपोर्टेड आईआईटी हैदराबाद कंस्ट्रक्शन। ये देखते हैं क्या है न्यूज़। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं बैठी हूँ ऑटोनोमस गाड़ी में। आईआईटी स्टूडेंट है और 3 टोक्यो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। So let's see which team will win. नमस्ते मेरे सदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? मैं आ गई हूँ आईआईटी हैदराबाद। मुझे पता है, तो एग्जिस्ट करता है। आईआईटी हैदराबाद और जापान के बीच में कुछ संबंध है और मैंने ये भी सुना है कि कुछ इमारतें जो है जापानी सरकार ने सपोर्ट किया बनाने के लिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। इंडिया भर के स्मार्ट पीपल यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मैं उत्साहित हूँ यहाँ घूमने के लिए। तो शुरू करें। ये गाड़ी जो है बड़ा मजेदार है। ये साधारण ऑटो रिक्शा नहीं है। ओह, अरे वाह, पर नहीं बैठा है। ओह वाह। बस गाड़ी में मुझे नहीं लगता कि जापानी यूनिवर्सिटी में ऐसे है। पता नहीं, मैं तो ग्रेजुएशन होने के बाद थोड़ा समय हो गया। पर मैं ये सोचूं कि ये जो लड़का आगे बैठा है वो इनका चलाने वाला जो है वो है कि ये भी एक स्टूडेंट है, क्योंकि अगर वो चलाने वाला है तो भैया ड्राइवर वाली सीट पे बैठ जाना, तो वहाँ क्यों बैठा है? मैं तो ये सोच रही हूँ जस्ट इन केस। ये केयरटेकर। कमाल है यार। Wow, it's amazing. अगर इमरजेंसी है तो गाड़ी रोक सकते हैं। Of course, ये ऑटोनोमस कार भी यहाँ आईआईटी हैदराबाद में बनाया गया है। Wow. So you are the engineers for building this autonomous car. What's the uniqueness of this car? It's fully autonomous, as you have experienced already, and we have deployed within the campus of IIT Hyderabad. It has AI stack which can detect the obstacle as well as it will react according to the obstacle. Indian road scenarios are quite different from other road scenarios. So according to road conditions, our vehicle react, and accordingly it will manage those like actuations parameter, and it will travel in autonomous mode. I see. Also, maybe for animals, because there are so many animals in India. Yeah. This campus shuttle can drive autonomously 24/7. We want to give the mobility to the people who can access in the night time also. Very interesting. Thank you so much. You guys are doing amazing job. ये है कमाल आज था ये स्कूल तो। का भ्रमण कराने वाले जीनियस लोग हैं। दरअसल आईआईटी हैदराबाद में जापानी प्रोफेसर भी हैं, कोतारो कताओ का प्रोफेसर, जो ब्लॉकचेन के बारे में सिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोतारो जी अभी बिजी हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट से मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ। I'm currently MTech research student, first year. In this semester, I'm learning about blockchain. I am working for inter-blockchain communication, increasing the security and developing a trustless system. So basically you're learning from Japanese professor about blockchain. So how is the experience? So far so good. He's a very good teacher. He follows a principle like practical knowledge is greater than whatever we read, and that's good. Because from textbook, I don't think we can learn everything. So we have to do something. That's what we do under him. What I feel is, if you do one mistake, you're done. Yeah? He'll catch you. He's that perfect. My name is Shuparna Kaur and I'm PhD student under Dr. Kotaro sir, and I'm working on enhancing some IoT readers mechanism using blockchain. How is Professor Kotaro? I have learned a lot from sir. He's perfectionist like she said, but even if you do not know something, he will help you. Means by himself he will sit by you and he will do things in your laptop and he will let you understand the concept, and where you are doing some faults he'll make sure you understand that. और हाँ, टोक्यो यूनिवर्सिटी से आए हुए जापानी स्टूडेंट्स भी थे। टोक्यो वैसे से टोक्यो आए हुए। यूनिवर्सिटी जो है जापान के सबसे उच्चित यूनिवर्सिटी है। मैं यहाँ पे पढ़ाई करने तक तो स्मार्ट नहीं थी, लेकिन एक बार जाके ना फोटोज खींचे हैं मैंने। तो देखते हैं ये लोग आईआईटी हैदराबाद में क्या पढ़ाई कर रहे हैं।リサーチインターンシップにしている城谷と申します。今やっていることは、マルチモーダル AI の開発です。どれくらいいるんですか？期間は1ヶ月。お名前は？ इनको हिंदी विंदी नहीं आती है 同 मतलब? じ研究をされてる。आते 研 होंगे 究は इंग्लिश 別 आते で होंगे। 僕は小太郎先生の下でやってるんですけど、はいソフトウェアデザインのネットワークスっていうソフトウェア上のネットワークについて तभी जापानीज प्रोफेसर लिया होगा कि बात कर सकते। से क्या अलग है? いろいろこう初めはカルチャーショック的なものもあったんですけど、 Shock や like っぱりこう何か問題というか、 Some problems. 当たるたんびに現地の学生の優しさには Be saved by the kindness of the 東大との students. 一番の違いでいうと、もう本当に助け合いのネッ The トワーク biggest difference が is ここに that 根 there's 付 a いていて、 strong mutual そこ support. にこう
受け入れていただいたことで1ヶ月間過ごしやすく、そのいろんな問題があってもそれが苦でなかった。 मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएशन के बाद या तो यूएस की कंपनी में जॉब लेते हैं या खुद की कंपनी शुरू करते हैं। जापानीज कंपनीज में काम करने वाले तो कम हैं। आपको कैसा लगता है आईआईटी स्टूडेंट्स जो है जापानीज कंपनीज में जॉब लेने में रुचि रखते हैं? めっちゃ多いですね。 Work in Japan सही too. बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएस कंपनीज में ज्यादा पैसे मिलते हैं। जापानी कंपनीज में शुरू से 1 करोड़ रुपए के आसपास कमाना बहुत मुश्किल है। ऐसा कल्चर ही नहीं है ना। 一番多分鍵になっていたのは、彼らが日本に行ったこと Japan がある because he 桜サイエンスとかいろんな日本に行く機会があるんですけど、学面だけを数字で見て捉えるのって多分両方行ったことがないからだと思うんですよ。だから日本に行けば学面以上の、いろんな多様な軸を持つことができて、彼らの中で何か生活の質であるとか、他の何かの様子が刺さってやっぱり日系にしようみたいなケースはよく話を聞いていて僕が思ったことですね。いやすごい貴重なお話、実際のそのフィールドの話聞けて嬉しいです。ありがとうございます。頑張ってください。今तीन आईआईटी स्टूडेंट्स हैं और 3 टोक्यो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। So let's see which team will win some questions. Okay, so starting with mathematics. So I will use calculator. And okay. वहाँ पे ना कैलकुलेट. 9 ओ ये क्वेश्चन, ये क्या हुआ भाई? ये Raise your hands, guys. Raise your hands. इसको कौन करेगा? ये क्या? Yes, 3776 correct. कैलकुलेटर इसमें आ रहा है. दूसरा सवाल भी मैथमेटिक्स. मुझे बहुत मजा आ रहा है. ये तो मल्टीप्लिकेशन है, हो रही है भाई. ये थोड़ी कोई होता है. Nobody is teaching people to be calculators. Wrong. 1,400? Are you kidding me? Yeah. They have an answer. 9202 Right. मैं वही कहना था 8,000 से तो ज्यादा होना चाहिए. The next question will be What was the number of travelers from India to Japan? What was the number of travels from India to Japan? ये किसी को पता क्या होगा? जो टीम सबसे नजदीकी संख्या बताता है ये किसी को पता है? Number of travelers from India to Japan. to India, the right number of travelers was 1.5 lakh, approximately. किसी को क्या पता? It seems like both teams have agreed in one number, so tell us your number. 2.5 lakh 2.5 lakh. Hey, 1.5 lakh 1.5 lakh. The answer is 3.3 lakh. क्या? कौन जीता? इंडिया? ये है लखनऊ हॉल कॉम्प्लेक्स. इसके अंदर क्लासेस होती है और ये इमारत भी अच्छा बना है. जापानी सरकार की मदद से बनी है. ओ तो चलो अंदर जापान के, जापान की मदद से का मतलब क्या है? जापान ने हेल्प किया होगा कंस्ट्रक्शन में. But is it difficult to pass all the exam and proceed to the second year? The professors make it so that it's easy to pass but difficult to score A's and A pluses. Oh. So it's not like you're constantly worrying about can I pass the exam or not? It's not yet. It's not that hard. But you guys are super smart, right? Like ये ज़्यादा typical classroom type कमरा है. तो मैं यहाँ के first year student से सवाल पूछूंगी. How are you enjoying IIT Hyderabad? Do you think it's like the best university, the best decision you ever made? What do you think? We can explore more things and we can do many projects by participating in many club activities. Are you interested in working in Japan? You can be honest. Not so much. Okay, I got it. What do you want to do in future? I wanted to become an AI engineer. AI engineer. In your opinion, which country pays the most? I think America. America. So not Japan. I don't know about Japan. Okay, thank you so much. Hi, Professor, I know the answer. 1 + 1 = 2. ये रिसोर्स नॉलेज सेंटर है, बेसिकली लाइब्रेरी है. और very nice. देखिए ये बहुत कितनी सुंदर नहीं? खूबसूरत Very nice. इमारत जो है ये एक्चुअली जापानी सरकार की मदद से बनाया है. और मदद का क्या मतलब है कि उन्होंने बनाई है तो देखते हैं अंदर कि कैसा है. पैसे दिए हैं क्या? ज्ञान संसाधन केंद्र. वेरी नाइस लाइब्रेरी ना. कहाँ है लाइब्रेरी? cool बुक्स कहाँ design. है? अरे वाह, वाह नाइस. यहाँ की तरह ही बनाई हुई है. लाइब्रेरी. Mostly during exam periods. अच्छा, तो किताब पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा आते हैं. अच्छा. There's a Japanese collection right there. Can you show us? Yeah. Okay. That's it. Japanese collection.
जापानीज मंगा भी है यहीं पे, क्या? लेकिन खोला क्यों नहीं? पढ़ाई में बिजी है इसलिए किसी ने खोला ही नहीं है। होंगे। क्या क्यों हंस रहे हैं? सही है बिजी है पढ़ाई में। वो खुला ही नहीं, बंद का बंद दिया। जेन गार्डन से आइडिया अरे वाह, बनाया गया था। नाइस। वाकई मिलते जुलते हैं। アドミニストレイティブセンターです。 बहुत बड़ा है, अच्छा बनाया, ये है ह्यूज। जापान डेस्क। ऐसे विद्यार्थियों को मदद करने के लिए जो जापानीज कंपनीज में जॉब लेना चाहते हैं या ओह, स्कॉलरशिप लेना चाहते अच्छा। हैं या तो इंटर्नशिप करना चाहते हैं जापानीज कंपनी आईआईटी के बच्चे ग्राफ करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज किया जाता है। वेलकम टू जापान डेस्क। और मुझे आईआईटी हैदराबाद के डायरेक्टर से इंटरव्यू करने का मौका मिला है। ओए हो, डायरेक्टर जी जी मैंने हिंदी आता है। BA किया है। अरे वाह, हिंदी में बीए किया है, हम देखिए। ओसाका यूनिवर्सिटी में फैकल्टी है। यूनिवर्सिटी में हिंदी डिग्री भी आई है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बैठिए ना, सॉरी प्लीज। तो नमस्ते आपका की Very nice guy. बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ इंडिया और जापान के संबंध के बारे में इसी हैदराबाद आईआईटी में। IIT Hyderabad Japan connection started when Abe-san, your previous Prime Minister, visited India in 2007. I heard that he visited in September 2007 and met our Prime Minister. That time it was our Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. And in the discussions I came to know that they wanted to support, Japan wanted to support one of the higher education institutions, particularly an IIT, with some financial support and also a research support. And that was the time Indian government was thinking of bringing out about 8 new IITs. So we came into existence in 2008. Along with us, 7 more IITs came into existence. So maybe that time the Prime Minister of India must have mentioned to him that we are coming up with newer IITs. If you want to possibly pick up one of them, and you can pick up one of them, and then possibly we can collaborate. Maybe that was the thing. और We बनाने also चाहिए had IITs no ऐसे। recorded information about that. The whole thing started in 2012. मुझे तो पता नहीं था by हैदराबाद signing में an IIT MOU है। with JICA, Japan International Cooperation Agency, and IIT Hyderabad, and we were given some Japanese yen loan, which is called ODA loan, to the government of India for academic buildings and hostels, Loan दिया था। complex and guest house and convention center, all of them sports complex, every one of them, which we call it as phase 2 construction. 85% of the money came from the JICA and 15% came from Indian government called MOU. But what is more important than construction is a friendship program that JICA and IIT Hyderabad have signed. First phase of friendship program was from 2012 to 2021, almost close to 10 years, where a lot of student exchange, faculty exchange has happened, and a large number of patents, publications have happened. In addition, Japanese industry got connected to IIT Hyderabad. From 2018, every year we have a Japan Day, where almost 25 companies come from Japan to recruit our students. अरे वाह, This is the only IIT possibly in the country where a large number of Japanese companies come to recruit our students. In fact, that Japan Day, in the last 2 years, we have converted into a Japan Week, and now we call it as Japan Month, अरे वाह, where a large number of activities happen. और भी कंट्रीज के साथ करना चाहिए One ऐसे। more important thing that we want, now that we have a strong collaboration already established, we have more than 40 MOUs with Japanese universities. No other institution in India has so many MOUs with Japanese universities. So we want to now act as a hub for Japan to India. So we want to see that IIT Hyderabad is a window or a door for the Japan to get connected to India, and we have started a number of activities in that particular direction. I'm looking forward more and more students in Thank you. Japan. Thank you so much for your time. May I bring on Next Bharat Suzuki Innovation Center? Let's go. Next Bharat Ventures is an impact fund of Suzuki Group which invests in impact entrepreneurs who are solving problems of the next billions in India. IIT हैदराबाद और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया और जापान के संबंध को और बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं आईआईटी हैदराबाद से जापान वापस आ गई हूँ और काफी मजा आया। एक तो फैसिलिटी बहुत नया सब बहुत सुंदर नया फैसिलिटी अच्छा बढ़िया था। वैसे टोक्यो यूनिवर्सिटी जैसे जो ऐतिहासिक पुराना और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज जो है देखने में हैरी पॉटर की दुनिया जैसी लगती है।
बहुत सुंदर है, देखने में बहुत मजा आता है, पर फैसिलिटी तो लेट्स बी ऑनेस्ट ओल्ड, थोड़ा पुराना है। पर IIT हैदराबाद जो है सब चीजें नई है, क्रिएटिव है, बहुत अच्छा लगा। और स्टूडेंट्स भी सब लोग बहुत अच्छे थे, मतलब थोड़ा बात करके तुरंत पता चल जाता है कि अरे यार ये बंदा स्मार्ट है ना। तो मैं जापानीज एम्बेसी और IIT हैदराबाद और जापान देश सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ ये कैंपस टूर अरेंज करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय। वाह, बहुत ही प्यारा कैंपस था, वेरी नाइस। और पूरा जैसे आजकल यहाँ के जो नए बन रहे हैं इंस्टीट्यूट्स, उसी टाइप से मैंने जैसे स्कूल्स भी देखे हैं, उसी टाइप से लाइब्रेरीज जो यहाँ की होती हैं, उस टाइप का एक एक चीज़ उन्होंने उसी आज की टेक्नोलॉजी और आज के टाइम के हिसाब से बनाई है। देखिए यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बहुत पुराने हैं। हाँ, जो जैसे ये बोल रही थी ना कि टोक्यो का इनका जो ये टोक्यो का भी यूनिवर्सिटी बता रही थी कि बहुत पुरानी है, हैरी पॉटर टाइम के जमाने की जो मूवी आप देखते हो उस टाइप के हैं। वैसे यहाँ पर भी हैं कि जो टॉप की हैं कॉलेजेस, जो टॉप के आप देखोगे वो बहुत पुराने हैं, तो वो भी उसी टाइप के पुराने का मतलब 250 साल पुराने, 200 साल पुराने, इतने बहुत पहले से चले आ रहे हैं। वो बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कुछ बिल्डिंग्स नई हैं जो न्यू बनी है, कुछ पुरानी है, मेंटेन कर रहे हैं, बट दोज आर वेरी वेरी ओल्ड एंड वेरी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस। ये अच्छी बात है कि नई कंस्ट्रक्शन है। 200 साल बाद कैसी होगी वैसे यहाँ के नजर आते हैं। दे हैव बीन अराउंड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने। लाइब्रेरी देखो कितनी फैंटास्टिक थी। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जगह बनाई है वो भी, हर एक अलग अलग बिल्डिंग्स, और उनका मतलब जो आर्किटेक्ट बनाया हुआ है वो कितना सुंदर है। काफी सारे बच्चे थे जिनको लग रहा था कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूएस में दे गो, वो तो है। सो और रिसेंटली बता दिया कि देयर इंटरेस्ट एंड देयर अपॉर्चुनिटी जो मिलती है, इट इज नॉट अबाउट सैलरी। दुख की बात तो यही है, इट इज अबाउट नहीं, पर सैलरी वो बोल रहे थे बच्चे कि मेन जो है सैलरी और लिविंग कैसे वहाँ उस जगह पे रहना का कंफर्ट क्या है, वो भी बहुत अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को। और जनरली जैसे एक बच्चे से पूछा कि तुम जापान जाओगे तो कहता प्रोबेबली नहीं, पर यूएसए का ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड, क्योंकि जापान में लैंग्वेज की प्रॉब्लम है and it will be very difficult for him to communicate to people. तो प्रॉब्लम ये है। और मजेदार बात ये थी कि इवन टोक्यो की यूनिवर्सिटी से भी बच्चे जो है यहाँ आके पढ़ रहे हैं, और इनके यहाँ पे प्रोफेसर्स भी कई जो हैं वो जापानीज प्रोफेसर भी हैं। तो काफी अच्छा इन्होंने किया हुआ है कि जापान वीक होता है, वहां से कंपनीज आते हैं हायर करने के लिए। ऐसे और भी जो बाकी IITs हैं उनको भी ये इस टाइप का करना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटीज मिले पढ़ने के बाद, बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हो कि कहाँ पे वो जॉब करना चाहते हैं। बड़ा मजेदार था यार, देख के बड़ा अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा मजेदार तो वो गाड़ी थी सेल्फ ड्राइविंग। वाह, वो देख के तो दिल खुश हो गया कि वहीं के स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है अपने लोगों बच्चों के लिए इधर से उधर जाने के लिए। दैट वाज वो हाईलाइट था इस वीडियो का। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।